Yes. So far, the formula that we studied in chapter number 3 was the very first formula that we studied was of momentum, which was P equals to mv, m the mass, and v the velocity. Then we discussed about average force, which was equals to mv minus mu over t. This mv over mu basically represents the change of momentum, f the average force, and t the time change. What was the next formula? That F cross T is equals to mv minus mu. This F cross T was named as impulse and as defined was as a force that acts for a very short interval of time. Example क्या था? The moment bat touches the ball, at that moment जो force apply होगा, that will be considered as impulse. Also, के और क्या एग्जांपल था हमारे पास? The foot when we kick the football, तो जब हमारा जो है when our feet will touches the football, तो at that moment जो force act करेगा, that will be considered as impulse. After that, we moved on to law of conservation of momentum, which was m1 v1 plus m2 v2 equals to m1 v1 dash plus m2 v2 dash. This was the momentum before collision, and this was the momentum after collision. Then there was another formula. What was that formula, Hurera? When the bodies stick together after collision. से एफ इज इक्वल टू एम ए वाला है या दूसरा? नहीं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम का ही फॉर्मूला व्हेन द बॉडीज स्टिक टुगेदर आफ्टर collision. मोमेंटम बढ़ेगा मैं सर याद नहीं. शाबाश. Anyone? Shahriyar, do you remember the formula for law of conservation momentum when the bodies stick together after collision? No, sir. If the bodies are sticking together after collision, that means they are going to have the same velocity. So we'll take that common and it will be equals to m1 plus m2 into v. This will be the formula of conservation of momentum when bodies stick together after collision. Let's see the very first formula. पहले वाले स्टार्ट तो बेसिक है. अपने कैलकुलेटर्स वगैरह रेडी रखें. सबसे पहला क्वेश्चन है, मैं थोड़ा सा ज्यादा जूम इन कर लेता हूँ. Is it better now for everyone? Okay. Very first question is calculate the momentum. What is the momentum formula? What will we do? हमें momentum calculate करना. P is equals to mv. M कितना दिया हुआ है? 1200 kilograms and v कितना दिया हुआ है? 25. यूनिट सेम है, हम सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे, विल गेट द आंसर. तो क्या आ जाएगा? 30,000 kilograms meters per second. सेकेंड पार्ट में उन्होंने हमसे क्या पूछा हुआ है? अगेन द सेम थिंग. उन्होंने हमें मास दिया हुआ है एंड वेलोसिटी दिया हुआ है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट द आंसर. थर्ड पार्ट में उन्होंने हमें मास दिया हुआ है एंड मोमेंटम दिया हुआ है एंड दे आर आस्किंग अस टू फाइंड आउट द वेलोसिटी. तो क्या फॉर्मूला यूज होगा? P equals to mv, where v is equals to momentum over mass. मोमेंटम की वैल्यू क्या है? 7800 किलोमीटर एंड मास कितना है? 12. What is 7800 over 12?
0 0 से कैंसिल आउट हो गया। 6.5 सर। Next part में he has asked us to find out the mass in grams. Again, यही formula use होगा. Masses would be equals to momentum over velocity. Momentum is given as 140 and velocity is given as 4 meters per second. So 140 divided by 40 क्या होता है? 35. 35? Sorry, ये point जी सर. 0.140 है, तो वो फिर 0.35 बन जाएगा। ऐसे ही है, देखो जरा, 0.140 डिवाइडेड बाय 4 0.35 ही बन रहा है। ये 0.14 है। का मानी है मूल। 0.035. अब हसीन का मतलब क्या होता है? खूबसूरत, यानी खूबसूरत मूल। ओके, एंड 0.035 किलोग्राम्स में है, सो दे हैव आस्क्ड अस टू फाइंड इट इन ग्राम्स। तो हम कैसे करेंगे? किलोग्राम से ग्राम्स में कैसे जाते हैं फजील? हाउ डू वी गो फ्रॉम किलोग्राम्स टू ग्राम्स? सर हम्म सर मल्टीप्लाई बाय 1000 कर देंगे। 1000। तो ये 3 उससे कैंसिल आउट हो जाएगा एंड विल गेट 35 ग्राम्स। बाकी भी उसमें उन्होंने यही पार्ट्स को कैलकुलेट करने को बोला। देन है a 1200 किलोग्राम 12,000 किलोग्राम mass velocity उसकी क्या है? 2 meters when it strikes another 10,000 kilogram railroad car that is at rest. If the car locks together, what is the final speed of the two cars? What formula are we going to use, Shahryar? We just did the formula. What would be the formula? Okay, no one is answering. What is the formula? M1 V1 equals M2 V2. No. M1 V1 Plus M2 V2 equals to M1 plus M2 M1 plus into M2 V. into V। Because देखो उन्होंने क्या लिखा हुआ है? After collision the cars lock together. Hint उसने हमें दे दिया। अब let's put the values in the equation. What is M1? 12,000. उसकी velocity कितनी है? 2 meters. Second mass कितना है? M2. और उसकी initial velocity क्या है? Rest पे है तो 0 होगा। ठीक है? So let's put the values in the formula. 12,000 times 2 प्लस 0, cos जब हम उसको 10,000 और 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही रह जाएगा। 12,000 प्लस M2 इज 10,000 इंटू वी हमें कैलकुलेट करना। सो 12,000 इंटू 2 कितना बन जाएगा? 24,000 डिवाइडेड बाय 12,000 टू 10,000 क्या बन जाएगा? 22,000। ऐसे ही है? हाँ, 22,000 ही बनता। ये 0 0 से कैंसिल आउट हो जाएगा। 22 डिवाइड बाय 24 क्या आंसर आएगा? 24 बन जाएगा हमारे 1.09। 1.09 is equals to. Let me know if anyone has any issue with this. No। Can we go to the next part? छोटे बच्चों में से किसी को मसला हो? फजील, आपको भी मसला नहीं है? या फजील आज बोल नहीं पा रहा होगा इंटरनेट की वजह से? चलो, मेरे लिए ही अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
car has 9300 kilograms, traveling at a velocity of this, strikes a second boxcar. Oh, the question is missing. इसका क्वेश्चन मिसिंग है तो हमें स्किप करना पड़ेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. A 25 grams bullet is fired from a gun with a velocity of 230 meters per second. If the gun has a mass of 0.9 kilograms, what is the recoil velocity of the gun? G. रिकॉइल वेलोसिटी का इफ यू रिमेंबर मैंने आप लोगों को बताया हुआ रिकॉइल वेलोसिटी का हमेशा नेगेटिव साइन आएगा. ठीक है. अब बिफोर फायरिंग द बुलेट इन द गन उसका इनिशियल मोमेंटम क्या होगा? 0. एंड फाइनल मोमेंटम क्या होगा? m1 v1 m2 v माइनस m2 v2 क्यों लगाया? बिकॉज रिकॉइल वेलोसिटी डायरेक्शन उसका क्या होगा? चेंज होगा. और वेलोसिटी चूंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी का डायरेक्शन जब भी चेंज होगा उसका साथ नेगेटिव का साइन आता है. सो क्या आ जाएगा? m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2. उसने कैलकुलेट करने को क्या बोला हुआ है? गन की स्पीड को कैलकुलेट करने को बोला हुआ है. विच मींस बुलेट का मास कितना है? 25 और उसकी वेलोसिटी कितनी है? 230 इज इक्वल टू m2 कितना है? 0.9 किलोग्राम्स. विच मींस हमें इसको भी किलोग्राम्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा. कैसे करेंगे किलोग्राम्स में कन्वर्ट? हाउ विल वी कन्वर्ट इट इनटू किलोग्राम्स फ्रॉम ग्राम्स? मल्टीप्लाई बाय 1000. कौन लिख रहा है ये मल्टीप्लाई बाय 1000? शेजर पकड़े गए हैं आप. शेजर इधर शेजर शेजर की एक चपेट बुक कर ली जाए. ठीक है. कर ली मैंने. नहीं ठीक है. सो ये आ गया एंड हमें इसकी वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है. विल लीव इट एज इट इज. सो 250 over 1000 to 230, बल्कि 0.9 भी यहाँ पे आ जाएगा. 25 into 230 divided by 1000 into 0.9. What is the answer coming out? I'm again telling you कि wherever there is a mentioning of recoil, velocity की direction change होगी, which means velocity के साथ negative का sign आएगा. And in most of the cases in our subject in physics, the negative sign only indicates a change of direction. 6.4. उससे ज़्यादा उसका कोई meaning नहीं होता. 6.4 is it? yes. That is the velocity of the gun. Now, I want you guys to solve this question at your end. A 20 grams bullet, मैं डेटा लिख देता हूँ. 20 grams bullet traveling at a speed of 250 strikes a block that's weight is 2 kilograms. With what velocity the block and the bullet moves after collision? Just raise your hand whosoever completes the question first. Yes. Let's skip this one. I'll give you as an home assignment. Let's get to this one. An ostrich has a उसका मोमेंटम कैलकुलेट करना है. क्या करेंगे इसमें? 146 times 17. This will give us 2482 kilograms meter per second. Second part was okay, calculate the distance traveled by the ostrich in 5 seconds. How will calculate the distance in calculate? Anji, who will give the answer? How to calculate the distance? Speed
सर स्पीड इनटू टाइम लग सकता है। बिल्कुल लग सकता है। डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। 17 स्पीड टाइम्स टाइम विच इज 5 सेकंड, सो 17 into 17 5 कितना होता है? 85 meters. 85 Next part is exactly the same. You guys can do this. Moving on to the third part. Uh, 0.5 kilograms and read out the question. 0.5 kilogram mass दिया हुआ इन्होंने, velocity is given as 15 meters per second, and we have a receiver that catches the ball and brings it to rest in 0.2 second. What is the force? Force का क्या formula होगा? Which formula are we going to use? Shahriyar. सर F is equal to ma Over t. M is given as 0.50, velocity is given as 15, and time is given as 0.020 seconds. Calculate the answer, please. थ्री हंड्रेड सेवेंटी सर Yes. सर ये किस चीज का फॉर्मूला है? F इज इक्वल टू mv डिवाइड बाय t। Average force का हमने ये डिस्कस भी किया स्टार्ट के अंदर। ये वाला फॉर्मूला mv minus mu over t, मोमेंटम, न्यूटन सेकंड लॉ एंड मोमेंटम से ये निकला था। और अगर हम इसको शॉर्टली करें तो F इज इक्वल्स टू एम ए होता है। ए किसके इक्वल होता है? v माइनस यू ओवर टी के। तो उसको हम जब पुट करते हैं तो ये क्या बन जाता है? एम वी माइनस एम यू ओवर टी। Okay, this question. Read out the question and try working on this one. The mass is given is at rest, initial velocity 0. A 3 Newton force acts on the body, F given है, time interval दिया हुआ है, force हमने find out करनी है that acts in the forward direction. सर ऊपर वाला फॉर्मूला ही लगेगा। हमारे पास 2 forces given है। ओ सॉरी, उसका बेसिकली इसमें हमें वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, वो दैट पार्ट इज मिसिंग। तो ऊपर वाला फॉर्मूला लगेगा तो ये क्या हो जाएगा? F क्रॉस टी ओवर m। F की वैल्यू कितना है हमारे पास? 3, T का वैल्यू कितना है? 1.5, and mass is given as 0.50. सर 9 है आंसर। At the end of this interval, a constant force of 4 newtons to the left is applied for 3 seconds. What is the velocity at the end of 3-second interval? Final velocity हमें calculate करनी है। क्या formula use करेंगे? सर इनिशियल वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। हमारे पास ये वाला फॉर्मूला होता है, हाँ जी। इसको रीअरेंज करेंगे। विल डू F क्रॉस T ओवर M इज इक्वल्स टू V माइनस U।
तो ये हमें फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, सो दिस वुड बिकम लाइक दिस। रीअरेंजमेंट ऑफ द फॉर्मूला समझ में आ गया सबको, इवन द जूनियर्स? फातिमा, ईमान बिल्कुल चुप है, फजील भी बिल्कुल चुप है। जी सर, आ गया समझ। Let's put the values in the question. What we have is फोर्स की वैल्यू कितना है 4, टाइम का वैल्यू कितना है 3, एंड यू की वैल्यू कितना है, सॉरी मास का वैल्यू कितना है अगेन 0.5, एंड इनिशियल वेलोसिटी कितना है, क्या कैलकुलेट किया था हम लोगों ने 9। अच्छा आप मुझे ये बताओ, यहाँ पे इसने टू द लेफ्ट लिखा हुआ है, तो क्या कोई साइन चेंज आएगा? एफ के साथ पॉजिटिव ही रहेगा या कुछ नेगेटिव साइन अटैच करेंगे हम इसके साथ? पहली फोर्स हमारे पास कहाँ पे लग रही थी, राइट पे लग रही थी, अब कहाँ पे लग रही है, लेफ्ट पे। तो हम एफ के साथ क्या ऐड करेंगे, नेगेटिव साइन, बिकॉज फोर्स भी क्या है, एज अ वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहाँ पे भी माइनस का साइन ऐड। 4 into 3 is -12 divided by 0.50 plus 9। देखें क्या आंसर आ रहा है। सर ये 15। बात समझ में आया कि मैंने माइनस का साइन क्यों ऐड किया है? बस पहले फोर्स कहाँ एक्ट कर रहा था, इट वाज एक्टिंग टू द राइट, अब कहाँ एक्ट कर रहा है, इट इज एक्टिंग टू द लेफ्ट। तो एफ की डायरेक्शन चेंज हुआ, तो वो क्या साइन ऐड होगा उसके साथ, नेगेटिव का। whenever there is a change of direction for a vector quantity, तो हम उसके साथ क्या ऐड करते हैं, नेगेटिव साइन ऐड करते हैं। तो व्हाट इज द टोटल आंसर कमिंग आउट? 15। और -15 या 15? -15। और माइनस का -15 साइन सर। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे माइनस का मीनिंग क्या होगा कि उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव। लेफ्ट। इनिशियल वेलोसिटी से लेफ्ट। ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर है। ठीक है, देन वी हैव अ बिट ऑफ द एमसीक्यूज, जल्दी से इसको कर लेते हैं। एंड वी हैव a child falls sideway of a sled while sledding on a frictionless ice. What happens to the velocity of the sled? हाँ जी, फ्रिक्शनलेस आइस है। ये ऑप्शन होगी। क्यों, वाई इज दैट हैपेंस टू वेलोसिटी, बिकॉज फ्रिक्शनलेस है, तो उसकी वेलोसिटी क्या करेगा, इंक्रीज। ड्यू टू इंक्रीज इन वेलोसिटी द चाइल्ड इज पुश्ड sideways. Which of the following statement properly relates the variables in the equation f cross t is equals to change of momentum? First is a large force acting over a long period of time causes a large change in momentum. A large force acting over a short period of time causes a large change in momentum. Force and time are directly proportional. The bigger the force, the longer the time. The force and momentum are inversely proportional. And the larger the force, the smaller the change in momentum. पहले तो हम इक्वेशन लिख लेते हैं, फिर उससे रिलेशनशिप डेवलप कर लेते हैं। एक ये है हमारे पास, एक हमारे पास क्या है, चूंकि हमारे पास रिलेशनशिप ये है, so we know that कि larger the things, larger with the change in momentum. Whereas इस लिखा हुआ है constant force, large force for a short interval causes a large, तो अगर short interval of time होगा तो यहाँ से change of momentum भी क्या होगा, less होगा कि larger होगा? So
If both of the things are प्लस bigger, होगा। larger change in momentum हमारे पास आएगा, क्योंकि सबके डायरेक्ट रिलेशनशिप हमारे पास है। बिकॉज अगर कोई एक क्वांटिटी भी स्मॉलर होती है तो ओवरऑल चीज में क्या आएगा, चेंज आ जाएगा। बिकॉज एफ एंड टी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अगर टी कम होगा तो एफ इंटू टी का वैल्यू भी कम हो जाएगा और चेंज इन मोमेंटम भी कम हो जाएगा उसके हिसाब से। ठीक है, सो अ लार्जर फोर्स एक्टिंग ओवर अ लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम कॉजेज अ लार्ज चेंज इन मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या स्टेट करता है? Which option do you think is correct? Hurry up, we need to do सर the सी नहीं MCQs. होगी, होगी। अच्छा जी, सी पे आते हैं। टोटल इनिशियल मोमेंटम ऑफ all the objects interacting with one another does not equal the final momentum। क्या ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम को जस्टिफाई करता है? Does not नो equal to the सर, नो, final momentum सॉरी। लिखा हुआ है। अब फर्स्ट पे आते हैं, टोटल मोमेंटम ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट्स विद वन अनदर इज जीरो। तो total momentum of all objects interacting with one another remains constant regardless of the nature of the forces between the objects। सर ऑप्शन बी। ऑप्शन नंबर बी आएगा हमारे पास। बिकॉज हमें एक्सटर्नल फोर्सेस को अकाउंट में लेके नहीं आना होता, बिकॉज उससे कोई एक्सटर्नल इफेक्ट्स, हमने क्या पढ़ा था, न्यूटन सेकेंड लॉ को पढ़ा था। इक्वल टू एम ए। ठीक है, जितनी भी फोर्सेस होती हैं वो एक्सटर्नल होती हैं, इंटरनल फोर्सेस उसको इफेक्ट नहीं करती हैं। सो ऑप्शन नंबर बी। An ice skater initially skating at a velocity of 3 meters speeds up to a velocity of 5 meters, the momentum of the skater becomes। बी, बी डिक्रीज सर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। हाँ, तो इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा? डिक्रीज होगा सर, बी। उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हुआ है बच्चा। सर वेलोसिटी इंक्रीज होगी ना तो मोमेंटम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के, तो डिक्रीज कहाँ होगा लिखा हुआ है? मोमेंटम। मोमेंटम इनटू वेलोसिटी है, इनवर्सली तो नहीं है मोमेंटम। अच्छा तो क्या होगा उसकी वजह से? वेलोसिटी अगर इंक्रीज हो रही है तो मोमेंटम भी क्या होगा, इंक्रीज, कॉज इट्स m इंटू वी। टू skaters stands m and a किसकी इक्वल होता है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी ओवर टाइम। हमने a की जगह पे उसको पुट कर दिया, एंड m दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, v से भी एंड u से भी। तो दिस वुड बी mv एंड mu। हमें पता है जब मास इनटू वेलोसिटी होता है दैट इज कंसिडर्ड एज मोमेंटम। तो ये फाइनल मोमेंटम हो जाएगा, ये इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा। F इज इक्वल टू mv माइनस u ओवर t का फॉर्मूला यहाँ से आ जाएगा। ओके, ओके सर। अब ये बन गया चेंज ऑफ मोमेंटम, क्योंकि चेंज का मतलब क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, और ये टाइम एज इट इज आ गया। फिर इसको रीअरेंज किया था, एक क्या किया था, F क्रॉस t इज इक्वल टू mv माइनस mu। तो हमने उसको इम्पल्स, जो अभी मैंने स्टार्ट में क्वेश्चंस बताई थी। अच्छा जी, सेकंड लास्ट एमसीक्यू है हमारे पास कि टू skaters stands facing each other, one skater mass is 60 kilograms and the other's mass is 72 kilograms। if the skater push away from each other without spinning, option number A, the 60 kilograms travels with a lower momentum, total momentum decreases, total momentum doubles, and their total momentums are equal but in opposite direction। हाँ जी,
कुछ माइंड में आ रहा है? अच्छा एक बात करते हैं, होल्ड ऑन बच्चों। जी, हमें पता है अकॉर्डिंग न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ फोर्सेस दैट अप्लाई ऑन ईच अदर आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। सो अगर फोर्सेस दोनों के इक्वल है और टाइम ऑफ कांटेक्ट भी दोनों का इक्वल है, तो एफ क्रॉस टी दोनों का क्या होगा? इक्वल होगा। इम्पल्स दोनों का बराबर होगा। दोबारा सुन लो, एफ अकॉर्डिंग न्यूटन थर्ड लॉ उन्होंने पुश किया एंड कोई स्पिनिंग नहीं हुआ। ये अभी हम आगे जाके एक और पॉइंट पढ़ेंगे, हमें समझ में आ जाएगा। सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस होती हैं, उनका मैग्नीट्यूड क्या होता है? सेम। और ऑब्वियसली जब वो इन कांटेक्ट आए होंगे तो उनका टाइम दोनों का सेम ही होगा जिस टाइम पे वो कांटेक्ट में आए होंगे। तो एफ क्रॉस टी आपस में क्या हो जाएगा? इक्वल। और वो किसके बराबर होता है? चेंज ऑफ मोमेंटम के। सो इफ इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज ऑफ मोमेंटम भी क्या होगा? इक्वल होगा। तो उनका टोटल मोमेंटम क्या होगा? इक्वल, बट उनकी डायरेक्शन क्या होगी? ऑपोजिट। डिड यू गाइस गेट दिस वन? Yes. एनीवन जिसको समझ में ना आया हो? जी सर। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, फोर्सेस इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, उनका मैग्नीट्यूड सेम होता है, सिर्फ डायरेक्शन ऑपोजिट होती है। ऑब्वियसली अब जो दो बॉडीज आपस में कांटेक्ट में आ रही हैं, कि दोनों का टाइम वेरी तो नहीं करेगा ना, दोनों एक ही टाइम पे कांटेक्ट में आई तो टाइम दोनों का सेम ही होगा। ऑन द बेसिस ऑफ दैट एफ क्रॉस टी बराबर हो गया आपस में, एंड मोमेंटम दैट्स इक्वल टू मोमेंटम। अगर इम्पल्स बराबर है दोनों का, तो मोमेंटम भी क्या होगा? इक्वल होगा, बट ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर। कैन आई गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ? Next is a golf ball traveling 3 meters per second to the right collides head-on collision with a stationary bowling ball in a friction-free environment. If the collision is perfectly elastic, the speed of the golf ball right after collision is। एक golf ball है, एक stationary, एक है bowling ball। इसमें से mass किसका ज्यादा होगा? बाउलिंग बॉल पता है ना सबको क्या होती है, जो खेलते वेलते हैं जाके आर्केड्स के अंदर। अब यहाँ पे एक चीज रहती है विच नीड्स टू बी अंडरस्टूड, परफेक्टली इलास्टिक का मतलब क्या होता है? इलास्टिक का मतलब ये होता है कि टोटल काइनेटिक एनर्जी रिमेन कंजर्व। जहां पे भी इलास्टिक का मीनिंग आएगा कोलियंस के अंदर, इसका मतलब ये होता है कि टोटल काइनेटिक एनर्जी जो है वो कांस्टेंट रहती है। अगर इन इलास्टिक कोलियन की बात करेंगे तो टोटल काइनेटिक एनर्जी डज नॉट रिमेन कांस्टेंट, ऑब्वियसली बन जाएगा। उसने कहा है कि इफ द कोलियन इज ऑलमोस्ट परफेक्टली इलास्टिक एंड फ्रिक्शन फ्री एनवायरनमेंट है, ठीक हो गया, तो स्पीड ऑफ द बॉल, गोल्फ बॉल इमीडिएटली आफ्टर द कोलियन क्या होगा हमारे पास? इक्वल, लेस, ग्रेटर, क्या बनेगा? लेस तो हो नहीं सकता क्योंकि फ्रिक्शन फ्री एनवायरनमेंट है, मच लेस देन भी नहीं हो सकता, हमने इक्वल या स्लाइटली ग्रेटर पे जाना है। अब अगेन मैंने आपको हिंट दे दिया कि गोल्फ बॉल वर्सेस बाउलिंग बॉल के मास में बहुत डिफरेंस है। तो राइट आफ्टर कोलिजन गोल्फ बॉल का वेलोसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? किसी को भी आंसर नहीं आता? कोई इवन ट्राई भी नहीं कर रहा? अबू हुरैरा, यस सर। क्या व्हाट कम्स टू योर माइंड, क्या होगा मैथ्स का अगर डिफरेंस है? तो अगर एक बहुत भारी चीज के साथ एक लाइट सी चीज टकरा के वापस आती है तो उसकी वेलोसिटी बराबर होगी, ज्यादा होगी, कम होगी? कम हो सकती है। Yes. सर नो।
क्योंकि फ्रिक्शन फ्री एनवायरनमेंट है तो कम का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। यस ठीक है, तो स्लाइटली लेस वाले दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, इक्वल और ग्रेटर में जाना है। और सिंस मास ऑफ गोल्फ बॉल इज मच लेस देन द स्टेशनरी बाउलिंग बॉल, तो आफ्टर कोलिजन उसकी वेलोसिटी क्या होगी, थोड़ी सी ज्यादा होगी पहले से। बी ठीक है, और इलास्टिक कोलिजन का मीनिंग सबको समझ में आ गया। इलास्टिक कोलिजन का मीनिंग क्या होता है, यहाँ पे एक और टर्म भी यूज होती है, आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम का मीनिंग क्या होता है, वेयर नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग। तो नॉर्मली जब हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को डिस्कस कर रहे होते हैं तो हम आइसोलेटेड सिस्टम्स को डिस्कस कर रहे होते हैं। ओके, everyone can I go to the next part? यस Then a tightrope walker walks with a long flexible rope in order to, किस लिए डी करता है, डी सर lower their center लोअर देयर सेंटर ऑफ of masses. Yes, juniors can forget this MCQ for right now because अभी आपने ये नहीं पढ़ा, ये by mistake आ गया। A 30 kilograms object moves to the right at 4 meters per second and collides head on with a 6 kilogram object moving to the left at 2 meters per second. Which statement is correct? अब देखो, एक राइट पे जा रहा है, एक लेफ्ट पे जा रहा है, कि दोनों दोनों के दरम्यान में प्लस का साइन आएगा या नेगेटिव का साइन आएगा? नेगेटिव। डायरेक्शन हमारे पास क्या है, ऑपोजिट है हमारे पास। ठीक है, 3 किलोग्राम 4 मीटर से जा रहा है एंड 6 किलोग्राम 2 मीटर्स पे जा रहा है, तो टोटल मोमेंटम उनका क्या बनेगा, मल्टीप्लाई करके देखो, 3 into 4 माइनस 6 into 12, क्या टोटल मोमेंटम निकलेगा, 0। आर वी क्लियर अबाउट दिस पार्ट? तो हमारे पास क्या ऑप्शन आएगी, द टोटल मोमेंटम both before and after collision will be 0. Next is two equal mass, one red and other blue, are dropped from the same height and rebound off the floor. The red ball rebound to a higher position. Which ball is subject to the greater magnitude of impulse during its collision? गौर से समझो इस सवाल को, उसने ग्रेटर मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पल्स बोला है। सिंस दोनों के मैसेज क्या है, सेम, दोनों सेम हाइट से सेम हाइट से फॉल किए हैं, विच मींस उनका स्पीड भी क्या होगा, सेम, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी सेम है, इम्पल्स भी सेम होगा दोनों का। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन आएगा, बोथ बॉल वर सब्जेक्टेड टू द सेम मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पल्स। हायर पोजीशन सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए, यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए नहीं दिया हुआ, बट देयर आर अदर पैरामीटर्स दैट कुड बी टेकन इनटू अकाउंट, बट एट आवर लेवल वी डू नॉट नीड टू बी कंफ्यूज्ड विद दैट। बिकॉज बिफोर हिटिंग द ग्राउंड तो दोनों की वेलोसिटी सेम था ना, आफ्टर क्या हुआ उसका हमें नहीं पता। उसने कहा ड्यूरिंग द कोलिजन इम्पल्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो हम कहेंगे वो दोनों का क्या रहेगा, सेम, बिकॉज उसकी वेलोसिटी सेम है, उसकी मास सेम है, दोनों सेम हाइट से फॉल कर रहे हैं, तो उनका इम्पल्स भी सेम बनेगा, तो तमाम चीजें आपस में क्या होंगी, कोलिजन होंगी। एट ड्यूरिंग इट्स कोलिजन लिखा हुआ है, आफ्टर कोलिजन लिखा हुआ होता तो हम किसी और ऑप्शन को कंसिडर करते। And the last MCQ is a rubber ball and a rubber lump of putty have equal mass. They are
thrown with equal speed against a wall, the ball bounces back with nearly the same speed with which it hits. The putty sticks to the wall. Which object experiences the greater change in momentum? सी। एक का मोमेंटम तो जीरो हो गया ना भाई, एक तो वापस आया, एक का मोमेंटम जीरो हो गया। पट्टी तो स्टिक कर गई ना उसके साथ, ए। तो फिर क्या आएगा हमारे पास? ए। कॉज इसकी इसकी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के हिसाब से क्या बनेगा? फाइनल वेलोसिटी इसकी माइनस में होगी, इनिशियल वेलोसिटी। चेंज ऑफ मोमेंटम कैसे फाइंड आउट करते हैं? एम वी माइनस एम यू। जब वो रिकॉयल आएगा, टकरा के वापस आएगा, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी से माइनस का साइन ऐड करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे सर। ठीक है, तो ये क्या बन गया? -2mv। लेकिन अगर हम पटी की बारे में बात करें तो उसकी भी, उसका चलो हम लिखते हैं सिंपल चेंज ऑफ मोमेंटम लिखते हैं, mv माइनस mu सादा चेंज ऑफ मोमेंटम होता है। क्या उसके पास फाइनल वेलोसिटी है? पटी के पास उसने लिखा है इट स्टिक्स टू द वॉल, विच मींस इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई है? जीरो। तो -mu। माइनस का साइन सिर्फ किसको शो कर रहा है? चेंज को शो कर रहा है। ठीक है, तो हमने उसके वजह से कंफ्यूज नहीं करना। तो विच वन इज बिगर? इट इज 2 माइनस mv, इट इज जस्ट mv। सो द बॉल। I hope you have understand every question. There will be certain questions that I'll share with you that you will practice on your own for the momentum part.